Hello and welcome to my channel Nikhat Online Teaching, and today the topic that we are discussing is communication. So let's get to know from where this word has derived. The word is derived from communicare or communis. What does this mean? Which means to share or to make common or to participate or to impart. So the word communication has been derived from the word communicare or communis, and the meaning of the word is to share, to make common, to participate or to impart. So here are the few definitions of communication. First is from Keith Davis. What does he say? He says communication is the process of passing information and understanding from one person to another. कम्युनिकेशन क्या है? वो एक प्रोसेस है जिससे हम एक इंसान से दूसरे इंसान पे कोई इंफॉर्मेशन पास करते हैं और दूसरा इंसान उसको समझ सकता है. So the second one is from John Adair. What does he says? Communication is essentially the ability of one person to make contact with another and make himself or herself understood. कम्युनिकेशन क्या है? एक एबिलिटी है जिससे एक इंसान दूसरे इंसान से कांटेक्ट कर सकता है और वो अपने आप अपनी बात जो भी वो कम्युनिकेट करना चाहता है, जो भी वो बात डिलीवर करना चाहता है, वो दूसरे को समझा सके. Third one is from William Newman and Charles Summer. What does they say? Communication is an exchange of ideas, facts, opinion or emotions of two or more person. एक से ज्यादा लोग जब एक दूसरे के साथ कुछ आइडियाज शेयर करते हैं या एक्सचेंज करते हैं, फैक्ट्स शेयर एक्सचेंज करते हैं, ओपिनियन शेयर एक्सचेंज करते हैं, तो उसको कम्युनिकेशन कहा जाता है. The fourth one we have of Lewis Allen. What does he says? Communication is a bridge of meaning. It involves a systematic and continuous process of telling, listening and understanding. Communication is a bridge. Communication is a bridge of meaning. वो कोई नॉन मीनिंग मतलब मीनिंगलेस प्रोसेस नहीं होता है. उसमें जो एक इंसान आपको बात डिलीवर कराए, दूसरे को समझना होता है. तो इसमें क्या होता है? प्रोसेस होता है कंप्लीट. एक टेलिंग, लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग का. एक बता रहा है, दूसरा सुन रहा है और उसको समझ रहा है. जब तक ये तीनों चीजें चलेंगी तब तक कम्युनिकेशन चलता रहेगा. अगर इनमें से ब्रेकेज आता है किसी भी चीज में तो कम्युनिकेशन वहीं स्टॉप हो जाता है. The last one we have is from Murphy, Hildebrand, Thomas. Communication is the process of transmitting and receiving verbal and non-verbal messages. It is considered effective when it achieves the desired response or reaction from receiver. So communication basically क्या होता है? It's a process of transmitting and receiving. मतलब अपनी बात कहना और दूसरे से रिसीव करना, चाहे वो वर्बल हो या नॉन वर्बल मैसेजेस हो. सो कम्युनिकेशन जब तक ही इफेक्टिव होता है जब तक वो अपना एम, जो अपना डिजायर है, वो अचीव कर रहा हो, जो उसको डिजायर्ड रिस्पॉन्स चाहिए होता है रिसीवर से, वो अचीव कर रहा हो. अगर बीच में अंडरस्टैंडिंग मिस हो जाती है तो वो जो प्रोसेस है पूरा टूट जाता है. प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल for more videos on educational psychology and also the videos that will be helpful in CTET, DSS, SB and for your KVS examination. And also you can pen down all these short notes and this will be very useful in your examinations. The next topic we have in this is essentials of effective communication. What is effective communication? Effective communication वो होता है जिसका कुछ असर हो रहा हो, जिससे हमें कोई एम या हमारा जो डिजायर हो फुलफिल हो रहा हो. ऐसे ही नहीं कि बस कम्युनिकेशन हो रहा है और उसका कोई मीनिंग नहीं है. इट शुड बी मीनिंगफुल. सो व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? here you can see a common communication environment, cooperation between the sender and the receiver, selection of an appropriate channel, correct encoding decoding of a message, recipient of the desired response and feedback. सो एक कॉमन एनवायरनमेंट होना चाहिए, कॉमन कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट होना चाहिए. जिस बारे में आप बात कर रहे हैं उस चीज का माहौल बना होना चाहिए. और जो सेंडर और रिसीवर है उनमें कॉपरेशन होना चाहिए. एक अगर बोल रहा है तो दूसरे को ध्यान से सुनना चाहिए और समझना चाहिए. एक एप्रोप्रिएट चैनल होना चाहिए. कोई मतलब जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, या आप फोन पे बात कर रहे हो, मैसेजिंग पे बात कर रहे हो या सामने बात कर रहे हो, तो एक एप्रोप्रिएट चैनल होना चाहिए अपनी बात भेजने के लिए और दूसरे की सुनने के लिए. और आपका एनकोडिंग और डिकोडिंग जो है मैसेजेस का, वो भी करेक्ट होना चाहिए. सामने वाला कहना क्या चाह रहा है, आपको वही मैसेज लेना है. अगर आप कुछ और मैसेज ले लोगे तो आपका कम्युनिकेशन जो है वो गड़बड़ा जाएगा. एंड डिजायर्ड रिस्पॉन्स एंड फीडबैक. आपको रिस्पॉन्स और फीडबैक जो भी है आपके सेंडर का, जो रिसीवर है, उसको डिजायर्ड रिस्पॉन्स देना चाहिए, उसको फीडबैक देना चाहिए फॉर अ प्रॉपर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन.
So what is the process of communication? Ideas or impulse that arise in the sender's mind. Formal expressions of the ideas or impulse using a medium and channel, that is encoding. Interpretation of the message by the receiver, that is decoding. Reaction or response of the receiver. Conveying the reaction or response in the feedback using a medium or channel. Decoding of the feedback received. तो प्रोसेस क्या होता है कम्युनिकेशन का? सबसे पहले आइडिया आता है सेंडर के माइंड में, फिर उसके बाद वो एनकोड करता है, वो जो आइडिया है उसको एनकोड करता है और रिसीवर तक सेंड करता है। और रिसीवर क्या करता है, जब उसको आइडियाज एनकोड होके मिलते हैं सेंडर से, वो उसको डिकोड करता है और समझता है। और फिर उसके बाद रिएक्शन या रिस्पॉन्स होता है रिसीवर का। इसी तरह से जो रिसीवर है फिर वो सेंडर बन जाता है और सेंडर रिसीवर बन जाता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। दिस इज द मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। सबसे पहले आप देख सकते हो सेंडर जो है वो अपने आइडियाज एनकोड कर रहा है और फिर किसी चैनल के थ्रू वो मैसेज जो है वो दूसरे चैनल के थ्रू किसको दे रहा है, रिसीवर को दे रहा है। रिसीवर वो आइडियाज डिकोड करता है और समझता है, फिर वो फीडबैक देता है। तो इसी तरह से ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है ये चलता रहता है। दिस इज अ शॉर्ट कम्युनिकेशन मॉडल। यू कैन कॉपी इट डाउन ऑल्सो। हाउ डज कम्युनिकेशन ब्रेक्स डाउन? तो बीच में कम्युनिकेशन रुक कैसे जाता है, खत्म कैसे हो जाता है, उसका रीजन क्या होता है? Elder and Turner used the concept of noise to describe physical and psychological force that can disrupt communication. तो जो कंसेप्ट इन्होंने यूज किया था वो था नॉइज। ठीक है, तो नॉइज की वजह से वो उन्होंने बोला कि जो कम्युनिकेशन है वो उसमें रोक आ सकती है, कम्युनिकेशन जो है वो ब्रेक हो सकता है, खत्म हो सकता है। किसकी वजह से? नॉइज की वजह से। और इन्होंने यहाँ पे दो कंसेप्ट दिए हैं, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। सो फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल फोर्सेस कौन से होते हैं नॉइज के, दैट आई विल टेल यू। Physical noise. Physical noise refers to conspicuous distractions in the environment that make it difficult to hear or pay attention. Physical noise can inhibit communication at any point in the process. तो ये फिजिकल नॉइज जो होती है वो जनरली हमारे आसपास के जो इन्वायरमेंट है उसमें कुछ शोर हो रहा हो या तो फिर डिस्टर्बेंस आ गई हो, जैसे दो लोग बात कर रहे हो बीच में से कोई तेज आवाज आ गई हो या कोई और इंटरप्ट कर दे और एक दूसरे की बात सुनने में या समझने में या उस बात पे अटेंशन पे करने में डिफिकल्टी आ जाए, तो वो आपकी फिजिकल नॉइज होती है। और ये फिजिकल नॉइज जो है ये जरूरी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोसेस के किसी कम्युनिकेशन प्रोसेस के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है, वो किसी भी पॉइंट पे आ सकती है और वो आपकी जो कम्युनिकेशन है उसको ब्रेक कर सकता है। एंड द नेक्स्ट वन वी हैव इज साइकोलॉजिकल नॉइज. Alleged mechanism within individuals that resist a sender's or receiver's ability to express and or understand message clearly. तो साइकोलॉजिकल नॉइज का क्या प्रॉब्लम है? वो जो प्रॉब्लम होता है वो सेंडर और रिसीवर के साथ ही होता है। या तो सेंडर प्रॉपरली एनकोड करके अपनी बात डिलीवर नहीं कर पाता, या तो रिसीवर जो है वो उसको डिकोड करके समझ नहीं पाता, या तो एक दूसरे की बात लोगों को समझ नहीं आती, या वो अपने जो थॉट्स हैं उनको जो है वो प्रॉपरली रिसीवर तक नहीं भेज पाता है सेंडर। तो ये जो होती है द एबिलिटी ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग अ मैसेज क्लियरली, ये आपका साइकोलॉजिकल नॉइज में आता है, जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन आपका प्रोसेस होता है वो ब्रेक हो जाता है। So this was all for today. The topic we had started was communication, and मैंने आज communication cover किया है आपके साथ starting उसकी। नेक्स्ट वीडियो जो है वो उसमें मैं आपके साथ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन कवर करूंगी। सो मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, उसके लिए आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप आप मेरी नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखेंगे। टेक केयर।